ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 6, entitled as Conversation between Narad and Vyasadeva, and the text number 17. प्रेमातिभर निर्भिन्न प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगो अति निवृतः पुलकांगोऽतिनिर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो आनन्द संप्लवे लीनो नापश्यम् उभयं मुने. नापश्यम् उभयं मुने. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation. O Vyasadeva, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Purport. Spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. Therefore, it is very difficult to give expression to such feelings. We can just have a glimpse of such ecstasy in the words of Sri Narada Muni. Each and every part of the body or the senses has its particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord, because in the liberated state, the senses are fully efficient in serving the Lord. As such, in the transcendental ecstasy, it is so happened that the senses became separately enlivened to serve the Lord. This being so, Narada Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. हरे कृष्णा. तो अब सभी भक्तों का हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवतम कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है. Especially, I would like to welcome two devotees for the first time in our ISKCON Goregaon West Srimad Bhagavatam class. Rasa Priya Shri Radha Mataji and Sur Nirmal Shama Priya Mataji. So materially they were sisters. Now His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj has stamped them as a spiritual sisters also. So they are sister and god sister both together. This happens only in devotional service. Why they are attending for the first time our ISKCON Goregaon West Bhagavatam class? Because that is their first day as new identity. So congratulations and simultaneously our prayers to Shri Nitai Gaur Hari, Shri Radha Rasa Bihari, Shri Radha Gopinath Ji for their wonderful journey and the official connection to Brahma Madhva Gaudiya Parampara through the dearmost disciple and very powerful leader of our ISKCON society, His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj ki Jai. Hare Krishna. So thank you very much. After hearing from the spiritual master, Narad Muni, what he did, he took the instructions of spiritual master very seriously. तो अपने आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद नारद मुनि ने अपने जीवन में सर्वप्रथम क्या किया, तो अपने गुरु ने दिए हुए आदेशों का अपने जीवन में बहुत अच्छे से पालन किया. तो हमारे जीवन में जिनके आध्यात्मिक गुरु आ गए हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, हमारे जीवन में हमारा एक ही लक्ष्य है कि even if we don't become a star devotee, we should not become a scar devotee on our spiritual master. So whatever he gives instructions and whatever his mood and the way he wants to serve Srila Prabhupada mostly,
we should adopt that, and with our life, soul, body, we should serve the mission of Srila Prabhupada. That is what each and every Prabhupada disciple and each and every Acharya wants. और श्रील प्रभुपाद की हमारे ऊपर इतनी कृपा अच्छी है कि हमें इतने सारे गुरुज दिए हैं उन्होंने, मोस्ट वंडरफुल, यू नो, विल नेवर गेट, यू नो, मतलब लोगों को मटेरियल अपॉर्चुनिटी, सी सो मेनी सर्वेंट्स, सो मेनी ऐश्वर्य एंड सो मेनी कार्स एंड सो मेनी बैंक अकाउंट्स. We can say, see, we have such Aishwarya, we have so many spiritual masters here in ISKCON. So that it's Srila Prabhupada's mercy. He alone created so many leaders. Sorry, मैं हिंदी में बोलना चाहिए. एक लीडर का ड्यूटी होता है कि वो लीडर्स क्रिएट करे. और श्रील प्रभुपाद इतने उत्तम उदाहरण है इस लीडरशिप के कि वो आए थे 40 रुपए के साथ, परंतु इस भौतिक शरीर को छोड़ते छोड़ते उन्हें हमें 400 मिलियन, बिलियन, जिलियन, जितना भी है वो प्रभुपाद देके तो गए मंदिरों के रूप में, परंतु विशेष करके श्रील प्रभुपाद ने हमें मोस्ट वंडरफुल जो गिफ्ट दिया है वो उनके डिसाइपल्स है, हमारे प्रेजेंट गुरुजन वर्ग जो है वो. तो हम एक्चुअली अगर नीचे डेमिगॉड्स भी देखते होंगे तो वो भी ऐसा अचंभित होते होंगे, माइट बी दे आर फीलिंग एनवियस अ लिटिल बिट टू सी द ऑपुलेंस ऑफ ISKCON एंड श्री चैतन्य महाप्रभु's मूवमेंट. जो ऐश्वर्य चल रहा है यहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं है. श्रील प्रभुपाद ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दी है. फिलोसॉफी, बेस्ट ऑफ बेस्ट फिलोसॉफी हमें दी हुई है. आचार्यगण, गुरुजन, सब बेस्ट ऑफ देम दिया हुआ है. टेम्पल्स, बेस्ट ऑफ टेम्पल, बेस्ट ऑफ एसोसिएशन, बेस्ट ऑफ हरिनाम, बेस्ट ऑफ प्रसादम हैज गिवन टू अस एंड बेस्ट ऑफ सर्विसेज इज गिवन टू अस. तो श्रील प्रभुपाद ने हमें जीवन में दिया है, प्रोवाइडेड इज ओनली वन थिंग, हम उसको सीरियसली ले, सिंसियरली ले, और ना कि उसका बर्थ राइट समझते हुए उसको एक्सप्लॉइट, उसका शोषण करे, परंतु हम अपने आप को ऐसा समर्पित करें कि श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में हम और आगे बढ़े. ये केवल आपके लिए, मेरे लिए भी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हो गए अभी 14 साल का हो गए. गुरु महाराज पता नहीं अभी तक खुश कर पाए नहीं कर पाए, परंतु हम सबके लिए एक रिमाइंडर रहता है हमेशा. जब भी किसी भक्त का दीक्षा होता है तो वी शुड रिमाइंड अवरसेल्फ कि वॉट एवर इज राइट नाउ स्पिरिचुअल मास्टर इज स्पीकिंग, दैट इज नॉट ओनली फॉर देम जो नए नए दीक्षित नवनिर्वाचित भक्त बन रहे हैं, परंतु हम सब के लिए. इसलिए एक साथ जब हम गुरु के सामने, कभी होता है कि लाइक जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जब पिछली बार दीक्षा दे रहे थे, तो सभी भक्तगण एक साथ ये ले रहे थे, अपने शपथ ले रहे थे. हिंदी में भी लिया और इंग्लिश में भी लिया उन्होंने. तो जस्ट बाय रिमेम्बरिंग माय स्पिरिचुअल मास्टर आई वाज अगेन टेकिंग दोज वॉव्स कि यस आई एम रिफ्रेशिंग माय वॉव्स करके. तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अगेन रिगेन दैट कॉन्शियसनेस. हमें फिर से वो जो हमने हमारे टाइम पे वॉव्स लिए, शपथ लिए, व्रत लिए हमारे गुरु के सामने, उसको बार बार हमें रिफ्रेश करना चाहिए. हरे कृष्णा. तो यहाँ पे नारद मुनि जो है अपने गुरुजनों की कृपा की वजह से उन्होंने ध्यान धारणा की और भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए. इंग्लिश में ये बोला जाता है, मैं हिंदी में भी उसको भाषांतरित करूँगा. बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण यू गेट गुरु एंड बाय द मर्सी ऑफ गुरु यू गेट कृष्ण. तो जब भक्ति वेदांत हिंदी में ट्रांसलेट करना है, भगवान के कृपा से, कृष्ण के कृपा से आपको गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से आपको कृष्ण मिलते हैं. ऐसे कैसे हो सकता है ना? ठीक है, गुरु मिलेंगे मुझे पहले, फिर कृष्ण मिलेंगे, बराबर है? नहीं, लेकिन कृष्ण की कृपा से तो गुरु मिल रहे हैं. तो इसका मतलब पहले कृष्ण की कृपा आ रही है और फिर गुरु आ रहे? नहीं,
क्योंकि गुरु की कृपा से तो कृष्ण मिल रहे हैं, तो जैसे समझना है वैसे समझ लो। इसका मतलब है गुरु कृपा और कृष्ण कृपा ये दोनों साथ में चलता है हमेशा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतो। तो नारद मुनि केवल उनके सेवा के वजह से भक्ति वेदांतिस्ट जितने भी वो जंगल में आके वहां पे 4 महीना रह रहे थे, नारद मुनि के सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनकी कृपा नारद मुनि के ऊपर आई। आध्यात्मिक जीवन में अगर आध्यात्मिक गुरु को हमें खुश करना है तो हमारा सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते तो श्रील प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का भाषांतर क्या है। ओ राधा, ओ कृष्ण, कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, प्लीज काइंडली एंगेज मी इन माय सर्विस। अरे प्रभु जी इधर आओ ना, वो थोड़ा सब्जी कटिंग करना है। प्रभु जी माना बाकी है, प्रभु जी यू नो मैं साधना हुए बिना कुछ करता नहीं। यू आर आस्किंग फॉर अ सर्विस। आप भगवान की सेवा मांग रहे हो, जैसे सेवा आते हैं हम क्या करते, बहाना ढूंढते कि कैसे मैं उससे बच के साइड से निकल जाऊं। विशेषता टेम्पल कमांडर, टेम्पल मैनेजर, टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट दिखते और आपको पता है कि ये सेवा देने वाले हैं, तो ऐसे करके चले जाते हैं, राइट। ब्रह्मचारी हो तो अपना उत्तरी लेके ऐसे बांध के चला जाएगा वहां से। So then what is the use of chanting of the हरे कृष्ण महामंत्र? हम बस केवल शब्दों के द्वारा भगवान को बोल रहे हैं सेवा दो सेवा दो सेवा दो, सेवा आई हम बहाना बना देते हैं करके। So service attitude and chanting of हरे कृष्ण महामंत्र should go simultaneously together. तो ऐसे बोलते हैं 99%, 99% of your advancement in devotional service depends on chanting of हरे कृष्ण महामंत्र। अब बचा हुआ 1% वो सेवा के ऊपर। इसका मतलब महत्वपूर्ण क्या है, कैसे, वो तो 1% ही है। 99% इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना मटेरियल कैलकुलेशंस के हिसाब से, परंतु आपका 99% चैंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट 1% ऑफ सर्विस एटीट्यूड। ये है डिवोशनल सर्विस। इसको समझ लेना है कि भले ही सेवा भाव आपको 1% लगता है, 99% आपको चैंटिंग लगता है, चैंटिंग के ऊपर आपका मैक्सिमम प्रगति अवलंबित है, भक्ति अवलंबित है, परंतु वो 99% जो जपा है, उसका एटीट्यूड है, उसका सिंसेरिटी है, उसका इंटेंसिटी है, वो उस 1% सर्विस एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए my spiritual master always says, especially for the brahmacharis, he has given 10 commandments, 10 instructions. In that the seventh instruction is that seventh instruction is that our brahmachari should be trained in humble menial service. तो सर्वप्रथम जब भी कोई ब्रह्मचारी ज्वाइन करता है 2 साल वो केवल टॉयलेट घिसता है, और मैंने भी 2 साल टॉयलेट घिसा था। दोपहर दिन के 11 बजे हमारा वो टाइमिंग चालू होता था कि हम जाके टॉयलेट घिसना चालू करते थे, और एग्जैक्टली 12:30 बजे भगवान के आरती का, प्रसाद का और ऑफरिंग का टाइमिंग होता था। सारे ब्रह्मचारी जाके हम घिसे हुए टॉयलेट, हम घिसते घिसते ही वो आके यूज करते थे। बहुत बुरा लगता था। अभी तो घिसा है 15 मिनट तो उसे फ्रेश रहने दो। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन एक्चुअली। तो एवरी डिवोटी, हम में से हर एक भक्त को अपने जीवन में हम्बल मिनियल सेवा का एटीट्यूड लेना चाहिए। नारद मुनि के ऊपर भक्ति वेदांतिस्ट क्यों खुश थे? क्योंकि उन्होंने हम्बल मिनियल सेवा की, उन्होंने नम्रता वाली सेवा की, जो सेवा कोई नहीं चाहता है। जैसे मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपने हृदय से हमेशा हमारे प्रेम नगर वाले भक्त, उसमें से बहुत सारे भक्त हैं जो जुहू जाते हैं, वहाँ पे उनका सेवा होता है, वहाँ के संडे फीस्ट अटेंड करते हैं, फिर शाम को यहाँ पे आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टाइम 6:30 7 o'clock दे विल बी हियर, एंड फिर उसके बाद पूरा अपना प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आप उनको देखोगे माता जी लोग वाइंड अप सेवा में जाते, बड़े बड़े बर्तन। और केवल ऐसा ही नहीं कि जो माता है जिनको घर में आदत वगैरह है, नहीं, मैं कितनी बार ऑब्जर्व किया, इवन द बैचलर सिंगल माता जी जो
यंग है, वो माता जी भी उस सेवा में थी। तो इट्स रियली अप्रिशिएटिव कि वो सेवा कोई देखता है ना, बर्तन बड़े बड़े हैं। एंड दैट डे आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज दोज यंग माता जी वो ऐसा उठा रहे थे करके। जनरली उनके घर पे भी उनके माता और पिता उनको ऐसा सेवा नहीं देते होंगे, परंतु मंदिर में भगवान के लिए वो इतना सेवा भाव से सब कुछ कर रहे थे। फिर एक बच्चा आता है यहाँ पे एवरीडे 6:30, आर्यन करके। फिर आपने अपने वेदांत प्रभु को देखा होगा बहुत बार, वो खुद से ही झाड़ू लेते हैं और वो झाड़ना बाहर चालू करते हैं जब भी कभी मंदिर संडे फीस्ट है, फेस्टिवल्स वगैरह है। दिस इज व्हाट चप्पल अरेंजमेंट, हाँ चप्पल अरेंजमेंट भी वो करके रखते हैं करके। तो इसको बोलते हैं संस्कार, इसको बोलते हैं हम्बल मिनियल सर्विस हमारे जीवन। तो यही नारद मुनि ने जब की, तब उनके गुरुओं की कृपा उनको मिली। तो हमारे जीवन में अगर सही में हमारे गुरु की कृपा हमें चाहिए, तो सिर्फ व्यासासन पे बैठना ठीक है, एक टाइम के बाद बैठना ही पड़ता है, नहीं भी बैठने की इच्छा है तो भी वो बैठना पड़ता है। परंतु विशेष करके हमें भक्ति में वो मूड देने का और वो सहारा, वो स्ट्रेंथ, वो सपोर्ट, विशेष करके एटीट्यूड देने का जो कार्य करेगा, वो हम कितना हम्बल मिनियल सर्विस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अन्यथा सर्वप्रथम आते ही हम बड़ी बड़ी सेवाएं करने लग गए, व्यासासन के ऊपर बैठे प्रचार कार्य करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। परंतु इनिशियल स्टेज से ही जब वो चालू हो जाता है ना, तो देन दैट दैट ईगो गेट्स वेरी मच अकस्टम्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। मैं नीचे नहीं आ सकता, दिस इज नॉट व्हाट माय टाइप ऑफ सर्विस, आई एम नॉट मीन फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स, आई एम समथिंग हायर। तो फिर आते भी तो लोग ऐसे आते हैं, बिकॉज आई एम समथिंग, आई एम द बॉस, नो मोर दास। सी दिस ब्राह्मण थ्रेड, ये काला क्यों पड़ा है? बिकॉज आई एम ब्राह्मण सिंस सो मेनी इयर्स, दैट्स व्हाई इट्स काला, यू हैव टू चेंज इट। राइट? सो देयर आर सो मेनी स्मॉल थिंग्स इन डिवोशनल सर्विस जो हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को ऐसा फ्यूल डालने की कोशिश करते हैं। और वो फ्यूल का कोई दर घटता नहीं है ना बढ़ता है, ना वो स्टेट ऑफ हार्मोस से आता है, वो फ्रीली अवेलेबल रहता है हमारे अनर्थों के वजह से। और जितना उसको फ्यूल मिलता जाएगा उतना हम पफ्टअप बनते जाएंगे, बलून जो है हमारा सा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अगर हमें वो एटीट्यूड, हम में से हर एक के आध्यात्मिक गुरु अगर देखेंगे, हम विशेषता, मैं जब वाव लेता था मेरे स्पिरिचुअल मास्टर के सामने हम वाव लेते, तो our vows are like this. My dear Guru Maharaj, I will follow the 4 regulative principles: no meditating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. I promise to chant minimum 16 rounds daily on my beads, and I will serve the mission of Srila Prabhupada in the mood of Das, Das, Dasanus, Das. This is what the vows are there. देन मैंने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का जब दीक्षा सुना था, तो उसमें भी ये दासानुदास वाला ये था। डिड यू ऑल्सो टेक सम? ओके, सो आवर वाउज आर सीइंग दिस 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर वाउज इन ISKCON. फर्स्ट, 4 regulative principles. Second, minimum 16 rounds. And third, serving the mission of Srila Prabhupada in Dasanudas. What is meant by Das? Das means अगर मैं झाड़ू भी लगा रहा हूँ तो भी मेरा एटीट्यूड वही रहना चाहिए कि मैं सेवक हूँ, और मैं बैठ के अगर लेक्चर भी दे रहा हूँ तो भी मेरा एटीट्यूड चाहिए मैं सेवक हूँ। अगर पूरे 1000 लोगों के सामने में जन्माष्टमी का महाआरती कर रहा हूँ, पीपल आर लाइक वाओ प्रभु जी सो फॉर्चुनेट इज डूइंग नो आरती, महाआरती ऑफ द लॉर्ड ऑन द जन्माष्टमी डे, व्हाट शुड बी द मूड? वो मूड क्या होना चाहिए? मैं सेवक हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस is given to me, so I'm offering it and on behalf of all the devotees. ये जब एटीट्यूड रहता है ना, that means we are humble, that means we are त्रिनादपि सुनिचन। इसका मतलब ये होता है, हाँ, अरे पिछली बार भी उसको दिया था,
उसके पिछले बार वो गौर आरती भी उन्होंने ही की थी। कभी कभी तो आपको बाकी भक्तों को, मैं भी तो सीनियर हूँ, आप कभी मुझे भी देना चाहिए यार। So opportunities are not demanded. The mercy should not be demanded. Mercy should flow. It should be commanded. It will be granted to you by seeing your humble attitude. हमारा नम्र भावना, नम्र भाव देखने के बाद कृपा हमें मिलती है, दी जाती है। कृपा ली नहीं जाती है, छीनी नहीं जाती है, या उसके ऊपर हम अपना बर्थ राइट नहीं समझते, मेरा जन्म का अधिकार है ये करके, ऐसा नहीं होता। और जो व्यक्ति जितना अपने आप को ये समझता है, सीनियर समझता है, उसने उतना हम्बल रहना चाहिए, उसने उतना अपने जूनियर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सर्विसेज की, अच्छे सर्विसेज की, बिकॉज सीनियर शुड टीच बाय हिज एग्जाम्पल। सीनियर का मतलब ऐसा नहीं कि आई हैव सीन थ्रू द ईयर्स। सीनियर मतलब आई शुड सी थ्रू ईयर्स। एंड जो व्यक्ति अपने जीवन में सीन थ्रू ईयर्स करता है, he is definitely Trinadapi. He should develop that attitude. And then only Srila Prabhupada का जो मिशन है वो आगे बढ़ते गए। आई डोंट नो, आज मैं बहुत अंग्रेजी बात झाड़ रहा हूँ करके। वो होता है कि सर्टेन टॉपिक्स, वो जब वो इमोशन का ये आता है, पता नहीं इतना अंग्रेजी में कब से बन गया जिंदगी में। परंतु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण एक ही चीज है, हमारा एटीट्यूड। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब मिशन का नाम दिया तो कॉन्शियसनेस दिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से सेवा होगी, कॉन्शियसनेस से हमारा जो जपा है, और कॉन्शियसनेस से हमारे जो डीलिंग्स है वो डिसाइड करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू एडवांस इन डिवोशनल सर्विस। हम कैसे प्रगति करेंगे हमारे भक्ति में, ये हमारे कॉन्शियसनेस से होगा। और उस कॉन्शियसनेस को तराशने का काम जो है वो हमें फर्स्ट डे से करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम हमारे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम ईयर्स के द्वारा आगे आगे बढ़ेंगे, 10 साल भक्ति की, 20 साल भक्ति की, 30 साल भक्ति की, परंतु इन सारे सालों में ये भी होगा कि हमें सेवा आएंगी, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है जिसके लिए लोग हैंकर करेंगे। कभी होगा जब जन्माष्टमी का मेन लेक्चर जो है इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट में 5000 लोगों के सामने देने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, महाआरती करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, प्रोग्राम लीड करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, मेन इंस्टॉलेशन जो होता है, मंदिर की इनॉग्रेशन हो रहा है इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट का, वहाँ पे मेन पहला ड्रेसिंग जो डेटीज का हो रहा है वो आप लोगों को मिले। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, मैं तो दे दूंगा बट बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज टाइम के साथ आएंगी, परंतु आने के बाद वेदर दैट अपॉर्चुनिटी इज टेकन एज अ बर्थ राइट और दैट अपॉर्चुनिटी इज टेकन एज अ मर्सी, ये डिसाइड करेगा कि हमने हमारे डिवोशनल सर्विस में कितना आगे बढ़े हैं, हमने कितना एडवांसमेंट किया हुआ। सो डिवोशनल सर्विस में एटीट्यूड मैटर्स, डिवोशनल सर्विस में कॉन्शियसनेस मैटर। दैट्स व्हाई कृष्ण इज भावग्राही जनार्दन। इसलिए कृष्ण बोलते हैं मनमना भव मदभक्तो मद्याज्य माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तम ते प्रतिजाने प्रियसि, कि मन में ये चीजें करना बहुत मुश्किल है। एक्सटर्नली कोई भी आके झुक सकता है, परंतु मन से भगवान के सामने झुकना या भक्तों के सामने मन से झुकना ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो इसलिए लोग जो बोलते हैं ना, मैं तो मन में जप करता ही रहता, हाँ मोरा मन वृंदावन हो गया। इधर हम 22 साल 23 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, आज तक हमारा मन जपा में लग नहीं रहा है। इनका पहले दिन से ही मन जप करना चालू कर देता है। तो ऑल ग्लोरीज टू दोज पीपल, हरे कृष्णा। परंतु इट्स वेरी डिफिकल्ट
to maintain specially that attitude and that consciousness. हमारे जीवन में वो भावना मेंटेन करके रखना दास्यत्व की, ये बहुत डिफिकल्ट होता है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दीक्षा से पहले हम दास 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 दासन उदास प्रभु जी आप. दीक्षा के बाद हम केवल दास बनते हैं. ये हम सबके लिए है एप्लीकेबल. फिर उसके बाद हम बॉस बनते हैं, फिर प्रभु बनना चालू कर देते हैं, और एक टाइम के बाद हम डायरेक्ट महाप्रभु बन जाते हैं. उसी पोज में खड़े रहते, बोलते करो अभी मेरी वर्शिप. आई हैव सीन, व्यक्ति को मैंने अपने जीवन में एक को एक्सपीरियंस किया है. कल आया हुआ बच्चा जो ऐसा बेस में ट्रांसफर हुआ है, उसको कुछ पता नहीं इसका उनका लॉन्ग फॉर्म क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, और ये व्यक्ति विजिट करने जाता है दूसरे दिन, तो बोलता है वो बच्चे ने मुझे दंडवत नहीं किया. बोले उसको पूछो दंडवत का मतलब पता है क्या, उसको पता है क्या इस्कॉन क्या, हरे कृष्ण. कल शिफ्ट हुआ है वो, ठीक है, कल उसको पता चला कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे बड़ा अच्छा एसोसिएशन है, अच्छे बच्चे रहते हैं. वो शिफ्ट हुआ कि मुझे शिफ्ट होना है, और टुडे यू आर एक्सपेक्टिंग ही शुड ऑफर मी दंडवत प्रणाम बाय सेइंग वांछा कल्पतरु. व्हाई? बिकॉज आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ टेम्पल. तो किधर से आए हो भाई? अर्थली प्लैनेट से तो हो नहीं शायद से आप. So people consider, people have, when there is a lack of education, spiritual education, lack of training, such kind of attitude can rise up. भक्ति लता बीज के साथ साथ ना वीड्स भी बढ़ते. वीड्स मतलब घास फूस साइड में बढ़ती, और वो घास फूस भी ऐसी लगती है जैसे कि वो भक्ति लता बीज का ही पार्ट है. परंतु एक्सपर्ट व्यक्ति को पता चलता है कि ये सारी वीड्स है, घास है, ये मेन भक्ति लता बीज नहीं. परंतु वो व्यक्ति भले ही वो 40 साल डिवोशनल सर्विस में क्यों ना हो, वो नियोफाइट ही रहता है अगर उसको लगता है कि घास फूस भी भक्ति लता बीज है, ये मेरा बर्थ राइट है, चलो आओ सब लोग झुको, मुझे प्रभु बोलो मेरे सामने कि यस प्रभु जी यू वांट समथिंग, you are my master of master, my life is dedicated to you only. There are, because of lack of training and attitude. So the most important thing for a devotee is to serve humbly, no matters 20 years, 30 years, 40 years. It's insignificant as compared to the eternity. Insignificant, those 30 years of devotional service, actually. So there is no proud to take. I have done devotional service. Rakshan Krishna Das has came to this Krishna consciousness 23 years ago. 23 years is nothing. It's like in a machhar's life, actually. So there is no proud in taking that. Our pride is, our acharyas, our parampara, and Sri Chaitanya Mahaprabhu is our pride, not ourselves and our own devotional service. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे.